Hi, today we are continuing with our third equation of Newton, third equation of motion given by Newton by using the graphical method. So yesterday we have completed the two equations. I think you have understood it well properly. So today we will try to explain the third equation, which is u square is equals to v square is equals to u square plus 2as, where is the small v is the final velocity of the object, u is the initial velocity of the object, a is the acceleration, and s is the displacement. So to verify this property or this equation, we need to find out its derivation from the graph. So as you know well about the graph, how it has been plotted, we will directly come to the derivation. So as we already know that S is equals to area of S is, that is displacement, is equal to area of the quadrangle DOEB. Where is DOEB? This is DOEB. If you rotate the screen to the right side, you will observe that it is a trapezium. What is the definition of a trapezium? Trapezium is a four-sided, four-angled figure in which the two opposite sides, the pair of one pair of opposite sides is parallel to each other with different sizes. Means the two opposite lines, these two lines are parallel to each other, but they have different sizes, different lengths, and the remaining two sides are not parallel or maybe of not same size. Okay, this is the definition of trapezium. So in this case we have to apply the formula for area of trapezium to find out the area of this quadrangle DOEB. Now what is the area of trapezium? It is half into sum of lengths of parallel sides into distance between the parallel sides. Now which are the parallel sides? This OD and this BE are the parallel sides. So we put here OD plus BE, and OE, this is the difference between these two parallel, this is the distance between these two parallel lines, so we put here OE. So in this way we can find the area. Now we know that OD is equals to U, OD is equals to U, BE is equals to V, OE is equals to T. How do we know that? For that we need to go to our previous slide of the first equation. Here we have said OD is equals to U, and there we have considered some things, and OE is equals to T, and as you can observe here BE is nothing but CD. As you can observe in this figure, this BE is the opposite side of this CD in the rectangle CBEO. Okay, so the opposite sides are same, so BE is equals to CO or OC, and OC is nothing but small v. Therefore BE is equals to V, and OE as we know is T. Now putting the values in this equation, we get S is equals to half into U plus V. We put U instead of OD, and V instead of BE, and then T instead of OE. We get first equation, that is equation number 1. Now we know that small a is equals to V minus U upon T, that is acceleration is equals to in final velocity minus inertial velocity upon time t. If we rearrange it, this T goes to the left hand side and A comes to the right hand side. It changes its property, and T becomes equals to V minus U upon A. This is equation number 2. And then combining this equation, putting this value of T in the equation 1, what do we get? We get S is equals to half into U plus V, and T की जगह पर क्या डालेंगे आप? V minus U upon A, as we have observed in equation number 2. Okay, now after putting that, what we have to do is this 2 multiplied by A, both are in denominator, it becomes 2A,
and by multiplying the numerator you get v plus u. You are rearranging this, u plus v is equals to v plus u, same thing. So we wrote here v plus u and then v minus u as it is. Now this 2a goes to the right hand side, sorry, left hand side, and there is already s, so 2a is in the division on the left hand side, sorry, right hand side, and it goes to the denominator, or sorry, numerator, and it multiplies with s and it becomes 2as. So ये हो जाएगा 2as, और what remains on the right hand side, v plus u minus v minus multiplied by v minus u. Okay, now if you observe this v plus u, v minus u, this is nothing but your formula of indices, a plus b, a minus b. So which formula is that? A square minus b square is equals to a plus b, a minus b. So same formula apply here, but here there is v instead of a and u instead of b. So what will we get? V square minus u square instead of this. So we get v square minus u square. So this is the equation. Now this minus u square goes to the left hand side and it becomes plus u square. So what will we get? The final equation, v square is equals to u square plus 2as. This is nothing but the third equation of your motion. So this derivation has been explained, I think. Okay, now coming to the next topic today, uniform circular motion. Now we have some example here. If you observe the second hand of a clock, this is not written in the screen, you can just listen to it. Observe the tip of a second hand of a clock. What do you say? What is its about its velocity and speed? The speed is constant because this is covering equal distances in equal interval of time. Okay, so speed is constant and there is no relation of any kind of direction in case of speed. But what about velocity? Velocity is changing constantly because every time it changes its path. It is not in a straight line, it is in a circular path. So it is changing the velocity but by a constant value. So we can say such a motion as a uniform motion, and in which direction the motion is moving. So for that you have to observe this. Here are some activity. So you draw some figures like this rectangle and move along it, move along it, move along it. What will happen? What do you observe? How many times do you change the direction? You change the direction for about 4 times in case of rectangle. In case of square. Now in case of pentagon, how many times do you change the direction? If you go like this, 5 times we are changing the direction. Now if in case of hexagon, 6 sides, 1 2 3 4 5 6, we change the direction for 6 times. For heptagon 7 times, and then octagon you will change for 8 times. Now as the number of sides goes on increasing into a polygon at infinite sides, it becomes equal to circle. It becomes similar to that of a circle. Okay, so this is called as uniform. The motion is uniform, and this is called as uniform circular motion because the motion is occurring in a circular path along the circumference of a circle. So this is the circumference of the circle. So the motion is uniform and it is along the circle of the motion, that's along the circumference of a circle. That's why we are calling it a uniform circular motion. Got it? Now what is the speed of that object moving in a uniform circular motion? So as we know that speed is equals to distance upon time. Now what is the distance it is covering? If you observe, if an object comes like this, goes like this, from this point to this point, again come back to that point, so the distance covered is equal to the circumference of the circle. So this is circumference is nothing but the distance. So if r is the radius of the circle and time t is taken by the completion of one revolution or one round, you say that the speed is equal to circumference upon time, and circumference is nothing but the formula of mathematics. We say that circumference is 2 pi r. So velocity or speed becomes equals to, actually speed, not velocity, it must be here speed. So speed becomes equals to 2 pi r upon t. Now velocity is constantly changing, we cannot determine it easily.
Now, if you want to determine the direction of velocity, in which direction the velocity is occurring or changing, or at a particular point on a circle, or at a particular point on the circular path of motion of an object, can we determine the direction of velocity, in which direction the velocity is working on that object at that point on the circular path. Suppose the circular path is like this. Okay, so this is a circle. This is not perfect, my drawing is not so perfect. So if you we have here an experiment. So if you take a circular disc like this and rotate it fastly and put a coin at this point, the coin has been put at this point, and as soon as you put the coin, you observe that the coin flies like this. In this direction the coin flies like this. So why does it happen? So some kind of force might be acting on that point which threw this coin in this direction. So if you observe carefully, this force is acting like this. Suppose the coin was here, suppose the coin is here, and the force is acting like this. So if you observe that this is nothing but the tangent of a circle. You might have studied about tangent of a circle in your mathematics or geometry. So tangent is perpendicular to the radius of the circle. This is a property of mathematics. So if we want to know about the direction of the motion of a coin, or the velocity of the coin along a circular path, you need to find the tangential motion. Okay, this was about the uniform circular motion. That's it for it. Now next is Newton's laws of motion. So Newton did so many experiments on motion to tell some 3 laws. He gave 3 laws, and on the basis of the motion he has observed in the surrounding, he had given these laws. And here are some questions asked that you have to observe why does this happens. So what would be the reason for this? For example, a static object does not move without the application of a force. If there is something placed on a table, अगर कोई चीज़ टेबल पर रखी हुई है, बुक है, रजिस्टर है, कुछ भी है, तो वो टेबल पर रखा हुआ है, जब तक हम उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी जगह से हिलता नहीं है. दैट इट रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. वाई डज दिस हैपन्स? ऐसा क्या होता है? वो मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्या उस पर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हैं? एक्चुअली में अगर देखा जाए, हम तो एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है. आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 8th स्टैंडर्ड में. क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर कार्डबोर्ड प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर कॉइन रखा जाता है, और कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया जाता है, और कॉइन कहाँ जाता है? वो गिरता है आपके ग्लास के अंदर. तो जैसे ही आपने कार्डबोर्ड हटाया, कॉइन कहाँ गिरा? नीचे. मतलब देयर वाज अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, which was not being observed when it was placed on the cardboard. Cardboard was stopping it. Means the cardboard was acting an opposite force to the downward force of the gravitation. So an object, Newton explained this concept, why an object remains at rest. We will see it. Next is the force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. मतलब किताब को, कोई किताब है टेबल पर रखी है, बुक रखी है, उसको उठाने के लिए जितना फोर्स लगता है अपने को, उतने ही फोर्स में टेबल नहीं उठाते आएगा. उतने ही फोर्स में हम टेबल नहीं उठा पाते. टेबल का वेट हैवी है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब फोर्स का कितना फोर्स अप्लाई करना है, इसका रिलेशन किसके साथ है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, हम देखेंगे वो कैसे किया. नेक्स्ट इज फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन. मतलब जब हम पेड़ को हिलाएंगे तो नीचे फ्रूट्स गिरते हैं. फ्रूट्स नीचे गिरते हैं. नीचे की तरफ ही क्यों गिरते हैं? क्या होता है? ये भी न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि नीचे की तरफ ही क्यों गिरते हैं, उड़ क्यों नहीं जाते. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम. अगर हमने फैन स्विच ऑफ कर दिया फिर भी वो कुछ समय तक घूमते रहता है. ऐसा क्यों होता है? न्यूटन ने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों होता है. तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अभी उनके लॉस को स्टडी करना है. तो न्यूटन के जो लॉ है वो इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है. इनर्शिया मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
to move in of an object to change its state of motion on its own. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपना मोशन का चेंज नहीं कर सकता, या वो अपनी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ में क्या है, तो इसमें इन्होंने बताया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि भाई an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। यही हमको एक्सप्लेन कर रहा है आपका फैन वाला जो चीज़ है, फैन कंटिन्यूसली मूव हो रहा होता है। तो कोई भी चीज़ अपनी ही स्टेट में रहेगी, या तो वो रेस्ट में, रेस्ट मतलब नहीं हिलेगी, और या तो फिर वो कंटिन्यूसली मूव होती रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या जब तक कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कोई चीज़ मोशन में रहेगी, जब तक उसको कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे, देखिए आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा ना, आपके स्कूल में या कहीं पर भी टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचते हैं, दोनों से 2 टीम होती है, दोनों साइड से वो ताकतवर बंदे एक दूसरे को खींचते हैं। तो देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी लोग खींच रहे हैं, इधर से भी रस्सी को खींच रहे हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रस्सी का, उस रोप का, वो एज इट इज स्टिल रहता है, जबकि उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस सेंट्रल पार्ट के ऊपर, तभी भी वो स्टिल रेस्ट पोजीशन में रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। क्यों, कब होता है ऐसा, जब दोनों भी फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, मतलब अपोजिट साइड पर हो गए, इधर भी इक्वल फोर्स है, इधर साइड भी इक्वल फोर्स है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही इधर वाली टीम ने क्या किया, और थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, तो ये रस्सी कहाँ जाएगी, अभी राइट साइड पर, मतलब जिस साइड पर फोर्स इंक्रीज हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया अभी यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, जिस साइड पर, जिस डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज हुआ, उस डायरेक्शन में आपको मोशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट। तो इसमें अभी न्यूटन का लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रखना है हमेशा, कोई भी चीज़ अपनी स्टेट में ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब फैन का जैसे केस हमने देखा कि भाई फैन ऑफ करने के बाद भी वो कंटिन्यूसली घूमता क्यों रहता है, क्योंकि जो हम कंटिन्यूसली उसको फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल फोर्स विच वॉज अप्लाइंग ऑन दैट, वो स्विच ऑफ तो हो गया, लेकिन कुछ समय तक वो चीज़ मोशन में ही, एक बार किसी चीज़ को आप धक्का दे दोगे, फोर्स अप्लाई कर दोगे, तो वो मोशन में ही रहेगी कंटिन्यूसली जब तक उसको कोई दूसरा अपोजिट एंड इक्वल फोर्स उसको बैलेंस नहीं करता। जैसे फैन को अब आप अगर बात करेंगे कि फैन को तो फिर हमने एक बार घुमा दिया, फैन नंबर बटन चालू कर दिया हमने, फिर बटन बंद कर दिया, फोर्स तो अप्लाई कर दिया, इसको हमेशा घूमते रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एयर है ना हमारे पास एटमॉस्फियर है अर्थ के ऊपर, तो एटमॉस्फियर जो है वो उसको ब्लॉक करने, कुछ पार्टिकल्स है उसमें, एक गैसेस है, तो वो गैसेस की वजह से क्या होता है, उसको अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है फैन की जो मोशन को, तो उसी वजह से वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। अभी उसको कुछ समय क्यों लगता है, कुछ टाइम क्यों लगता है रुकने के लिए, क्योंकि अब क्या होता है, जो गैसेस का और एटमॉस्फेयर का फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, when an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it। मतलब हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है। एक्चुअली there are a number of forces acting on it, but they cancel one another so that the net force is zero। Newton's first law explains the phenomena of inertia, that is inability of an object to change its state of motion on its own। It also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of object or at rest or in uniform motion। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि भाई कोई भी चीज़ मोशन में ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, या तो फिर कोई भी चीज़ रेस्ट में ही रहेगी। अब ऐसा मतलब नहीं है कि भाई वो रेस्ट में है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं है, उसके ऊपर फोर्सेस है, लेकिन वो इतने बैलेंस्ड फोर्सेस है हर डायरेक्शन से कि वो उसको मूव नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कि हमने टग ऑफ वॉर के केस में देखा कि बैलेंस्ड अगर फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शंस में तो वो उसको हिलने नहीं देता है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको रेस्ट पोजिशन में इसलिए दिखता है क्योंकि
बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर और वो उसको बैलेंस करके एक जगह पे टिका के रख रहे हैं। लेकिन अगर सपोज कि भाई कोई ऐसा बैलेंस फोर्स होता ही नहीं, अर्थ पर कोई फोर्स ही नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता, तो हम हवा में उड़ते थे। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ हम, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स है भी, नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है ही नहीं, आजू बाजू का कोई फोर्स है ही नहीं, एयर का कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्या होगा, सब चीज़ें ज़मीन पर चिपक जाएगी, हम हिल भी नहीं पाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सोच के देखो, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा और हम ज़मीन पर एक चिपक जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें भी कुछ एग्जांपल दिए गए, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, यू कैच द बॉल्स, विच बॉल वॉज ईजियर टू कैच, वाई। देखो क्या हुआ, आपके फ्रेंड को बोलो कि भाई दूसरे माले पर जाओ, सेकंड फ्लोर पर जाओ और वहाँ से आप क्या करो, दो बॉल फेंको, एक प्लास्टिक का और एक रबर का, और आप दोनों बॉल्स को एक एक करके कैच करो। क्या होगा, कैच तो कर लोगे, होगा क्या, आपको कौन सा बॉल कैच करने में ज़्यादा आसानी होगी, प्लास्टिक बॉल कैच करने में आसानी होगी, और रबर बॉल का, रबर या कॉर्क का बॉल ले लिया, सिंथेटिक का बॉल ले लिया, वो बॉल कैच करने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, इसलिए दोनों का मोमेंटम अलग अलग है। अब ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है न्यूटन सेकेंड लॉ। मोमेंटम के बारे में CS न्यूटन ने बताया था सेकेंड लॉ में, कि मोमेंटम नाम का एक कंसेप्ट होता है। और क्या होता है, जब कोई हेवी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी, अभी जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो स्लाइड के केस में हमने देखा था क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। तो जब भारी वाली चीज़ नीचे आएगी तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आएगी, ज़्यादा स्पीड के साथ आएगी, तो आपको डर लगेगा उसको कैच करने के लिए, थोड़ा सा हल्का। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो वो मोमेंटम, तो मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है, दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा है एक्टिविटीज़ में है, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स you at slow speed, try to catch it. Now ask your friend to throw the same ball at high speed towards you. Now try to catch it. Which ball could you catch with great ease? Why? तो यहाँ पर आपके फ्रेंड को क्या बोलना है कि भाई एक काम करो, बॉल मेरी तरफ फेंको, पहले स्लो स्पीड से फेंको, फिर से फेंको, फिर दूसरी बार फास्ट स्पीड से फेंको। तो क्या होगा, ज़्यादा फास्ट वाली स्पीड से आप नहीं पकड़ पाओगे, मतलब अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए किसी चीज़ के ऊपर तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो फोर्स और मोमेंटम का कुछ तो भी एक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो हम पहले समझेंगे मोमेंटम क्या है और उसके बाद देखेंगे फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है। वही फोर्स और मोमेंटम के रिलेशन को हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द mass of the former object and its velocity. This means the effect of the force act depends on the, मतलब कोई भी चीज़ कितना फास्ट मूव करेगी, अगर हमने ऊपर से नीचे फेंकी तो वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर और वो कितनी वेलोसिटी से नीचे आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोमेंटम। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है और उसका मास कितना है, उसको और हम प्रोडक्ट कर दे, उसको मल्टीप्लाई करते तो हमको मिल जाता है मोमेंटम। मतलब मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब मोमेंटम का डेफिनेशन देखो यहाँ पर, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv। कैपिटल P से डिनोट करते हैं हम मोमेंटम को। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें हम लोग वेलोसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी, अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए किसी वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो जिस चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब यहाँ पर बताया है न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है या कोई बॉल आपकी तरफ फेंका जा रहा है तो मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, कि उसने किस फोर्स से आपकी तरफ बॉल फेंका उस पर डिपेंड करता है। और फोर्स किस पर डिपेंड करता है, और मोमेंटम उनका डायरेक्शन कौन सा होता है, कि भाई कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। आपके तरफ है बॉल की डायरेक्शन तो फोर्स आपकी तरफ है तो बॉल आपकी तरफ आएगा, मोमेंटम आपकी तरफ आएगा। और अगर आपसे दूर की तरफ जा रहा है तो वो उसके अपोजिट साइड पर रहेगा।
तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब इसमें यहाँ पर कुछ डेरिवेशन दिया है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है कैपिटल F, और डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी का है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है कुछ टाइम के लिए t, और वेलोसिटी उसकी फाइनल हो जाएगी v। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t, m इंटू v। rate of change of momentum, change in momentum upon time. Now rate of change of momentum is equals to final momentum minus initial momentum. final momentum कितना है mv और initial momentum है mu अपॉन t। तो m अगर कॉमन ले लो आप यहाँ से तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा v माइनस यू, और v माइनस यू अपॉन टी अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दोगे तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया a फॉर एक्सेलरेशन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया आपका एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड करेगा। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। Momentum depends on mass and velocity, and rate of change of momentum depends on mass and acceleration. Now according to Newton's law, change of momentum is directly proportional to the force applied. अब इसको अगर हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, इक्वल टू साइन लाया, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी पड़ती है k, और k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज इक्वल टू 1। तो 1 वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो दिस इज नथिंग बट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।